Come in, sir. Come in. Good morning, sir. Good morning. Introduce yourself. So, my name is Sajjad Ahmed Lone. I was born and brought up in Bijbihara, Anantnag. I have completed my post-graduation in zoology from University of Kashmir. I am currently working in the finance department of Jammu and Kashmir. I have interest in teaching the underprivileged students. I am playing sports of badminton. You are from Zabalpura, Fazalpura. Fazalpura, yes, sir. Okay. Now, apprise the members of the panel about Bijbihara, background, history of Bijbihara. So, kindly, with your permission, can I use bilingual language, Urdu as well as English? Go ahead, go ahead. So, Bijbihara in ancient times actually called the Vijayeshwara on the name of the temple which was built by Raja Vijaya Anand. Bijbihara is the land of temples. There are many temples in Bijbihara. Like there is Ikdash Rudri temple which is built on the Harishchandra Ghat. There is Vijayeshwara temple which is devoted to the Shaivism. There are different types of ghats like Harishchandra Ghat, Devika Ghat, and Sadhpit Ghat. And one of the major important places in Bijbihara which is called the Samthan, which is also called the Chakradhara. According to the Indian mythology, the Chakra, when the water is drained out from the Kashmir by Lord Vishnu, then Shankara, उसका एक था वो डिवाइन वेपन था, उसका नाम था चक्रा. उसने वो फेंका, वो उसके फ्रिक्शन, एयर के फ्रिक्शन की वजह से एक फायर बॉल वहाँ पे गिरी, तो उसको चक्रा बोला. उस सैमथन की इम्पोर्टेंस ये है कि वो कनेक्ट करती है कश्मीर हिस्ट्री, नियोलिथिक पीरियड और कुशन्स के बीच में जो गैप आई है उसको कनेक्ट करती है. वहाँ पे रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशंस भी हुई है और जम्मू एंड कश्मीर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे स्टडी कर रहा है इस वक्त. और एक दशरुद्र टेम्पल की ये इम्पोर्टेंस है. वहाँ पे एक पाल था, उसको बोलते हैं नियोलिथिक और कुषाण पीरियड को कनेक्ट कैसे कर रहा है वो, ये प्लीज इलैबोरेट. आपने कहा नियोलिथिक और कुषाण पीरियड को कनेक्ट कर रहा है वो जो आपने बताया था, हाउ एग्जैक्टली? द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बिजबेहरा का है, जो नियोलिथिक पीरियड से जो फर्स्ट टुवर्ड्स द लेटर डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है. तो ये कैसे कनेक्ट कर रहा है उसको? ये तो एक तो माइथोलॉजिकल अकरेंस हो गया और दूसरा तो प्रॉपर हिस्टोरिकल डायनेस्टी है. इसके बीच को कनेक्ट कैसे कर रहा है वो? वहाँ पे जो एग्जीक्यूशंस हुई है वो डिफरेंट जो वहाँ पे मतलब डायनास्टीज वहाँ पे थी, तो वो दिखाते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर उसके बाद क्या थी, कौन कौन से डायनास्टीज यहाँ पे आए हैं. अच्छा, why we do have oldest Chinar in Kashmir? As far as I know, it is in the district Badgam, which is about 670 years old. But in Bijbehara, there is also an old Chinar, which is about 400 years old. Are you sure? I have read it about the one Badgam. which we have in Padshahi Bagh. There is also oldest Chinar, but what I have read, so I am not sure about this, but I have read it is oldest Chinar is in Badgam. Where in Badgam? Sorry, sir. I don't remember. Have you read this anywhere? Yes, sir. From YouTube source. Huh? From YouTube source. YouTube? Yes. Can YouTube replace settled facts? Sir, अच्छा, what else about Bijbehara? सर बिजबेहरा फेमस है चिनार्स के लिए, उसको और एक नाम बोलते हैं टेम्पल ऑफ लैंड ऑफ चिनार्स. Was Bijbehara ever capital of Kashmir? Sorry, sir. You are working in finance department? I am apprentice in the finance department. Recently joined with the finance department. We are undergoing training in the finance department. You are under probation. You use the word apprentice. Now, difference between probationer and apprentice. Are you an apprentice or a probationer? Sir, I am an apprentice. We are हम वहाँ पे सीख रहे हैं किस तरह जनरल फाइनेंशियल रूल्स, फाइनेंशियल कोड्स. तनख्वाह मिलती है आपको? नो सर, अभी नहीं. नहीं मिल रही आपको? नहीं, 25th स्टेफन 6000 है, 25th हमने ज्वाइन किया, 25th ऑफ जून.
6,000 ने बोला है. not grade, not pay. No, sir. Salary in the grade. Different. Salary in the grade you are not getting. No, sir. You are getting consolidated amount. Yes, sir. They are apprentice. Acha, you are working in finance department. Can you this mention the basic features of the budget, financial statement of the state, which was passed by Parliament for year 1425. Budget is passed by the Parliament of India under Article 112. It is presented by Finance Minister in the Parliament. The budget 2024 and 25 has several features. It is mainly focuses on the employment, skilling. No, what is the total amount of revenue? Revenue total within state, how much we generate? What are our own resources total? Devolution from center, which is our constitutionally guaranteed to us. The gap, the shortfall. If I have say rupees 100, my requirement, I am generating say 10 rupees. I am getting say 60 rupees as devolution from central government. Then some finance commission award also. But still there is some gap, which is being financed by central government through assistance, not loan, assistance. Now, what is the total amount and what is the amount in each of these categories, components? Any idea? Sir, जहाँ तक मैं जानता हूँ, You can speak in Urdu. When you are before commission also, ये नहीं जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में बात करो. If you are comfortable in your Urdu language, you can speak in Urdu. ये जरूरी नहीं है कि मतलब दूसरे को इम्प्रेस करना, मुझे अंग्रेजी आती है ना, यहाँ स्टेट लैंग्वेज उर्दू भी है. आप ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हो जब आप उर्दू में बात करोगे. उनको अंग्रेजी को क्या करना है? दिस इज रिलिक ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम. तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. नन विल रीड दिस अगेंस्ट यू इन केस यू स्पीक इन उर्दू. यदि बल्कि अगर उनको लगेगा कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो व्हाई आर यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम और देयर टाइम? स्पीक इन उर्दू अच्छी तरह से. हाँ सर, हमारा जो है 1,18,000 और 709 करोड़ से जो हमारा रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर भी उतना ही है, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है बराबर, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू भी. अब हमारी जो बजट है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस पिछले सालों से कर रही थी. हमारा जो जब हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखेंगे तो मेजॉरिटी जो है हमें सेंट्रल ग्रांट्स मिलते हैं. मेजॉरिटी जो है हम सेंट्रल ग्रांट्स देते हैं. उसके बाद हमें जो अपने स्टेट के टैक्सेस होते हैं उससे पैसे उठाते हैं. You are telling same what I told to you, what I described. I am telling you specify the amount. Sorry sir, You don't know. exact amount. ठीक है, कहो I don't remember. आपने सेंट्रल ग्रांट्स बताया, मोटा मोटी कितना फीसदी सेंट्रल ग्रांट्स है टोटल बजट का आपका जम्मू कश्मीर का? यानी कि इतना परसेंट सेंट्रल ग्रांट है, इतना परसेंट हमारे स्टेट टैक्स से आता है, इतना लोन है. मोटा मोटी आप फाइनेंस में काम करते हो. सर हमारा 19% सेंट्रल ग्रांट से आता है. हमारा टैक्सेस से हम अब अराउंड 12% उठाते हैं जो हमारे स्टेट टैक्सेस होते हैं. आपको याद है कुछ या ऐसे तुक्के मारते हो? तुक्के नहीं इतने याद है थोड़े. तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो कहो, जस्ट टेक नोट ऑफ के, क्योंकि और वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, हो सकता है कोई आपसे पूछेगा. इसलिए व्हेन यू गो बैक, वहाँ देखो क्या वो बजट देखो, बजट के पेपर्स देखो, उसमें आपको पता चलेगा टोटल इनकम क्या है सेंटर से, उसमें कितना कंपोनेंट सेंटर का है. लेट इट बी इट फाइनेंस कमीशन अवार्ड या ये जो डेवोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है वो, देन शॉर्टफॉल कितनी है और वो सेंटर किस तरह हमें असिस्टेंस दे रहा है. वी आर द ओनली UT or state in the entire country who are getting highest percentage of assistance so far as in order to bridge the gap between income and expenditures. ये इसको अच्छी तरह से स्टडी करना. डेवोल्यूशन जब हुई तो 1% इनकम. अच्छा, ये बता बिजबिहारा के बारे में, some form of dance in Bijbara. What is that?
ज़्यादातर सर हाफिज़ा डांस, हाँ? हाफिज़ा डांस जो शादी पे करते हैं, नहीं, हाफिज़ा डांस। हाफिज हाफिज नगमा, हाँ, क्या? वही हाफिज़ा नगमा डांस करते हैं वहाँ पे। व्हाट इज दैट? सर, और भी कुछ है। सर और हम जब There सोइंग is a shrine. There is a shrine in Bijbihara where that is being enacted during festival days. What is that form of dance? सॉरी सर, Damuel na karan. बस दाम है। Sudgot Sikyago. What is that? Bijbihara, this is known. Where in case you want to see with your own eyes that form of dance, you will find during the festival days in Bijbihara. And who are the people who do that? Only men, not women. यस सर। This is peculiar to Bijbihara. Sajad, your DAF shows that you have completed your PG in Masters in Zoology in year 2015. 10 years have passed by. What all have you done in these 10 years? Apart from this, the recent job, 9 साल आपने क्या किया? सर जब मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और उसके बाद मैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन करने लगा, तो उसके बाद मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं रही, तो वो अनेबल हुआ कुछ कमाने के लिए। हम 4 भाई बहन हैं, तो उसके बाद मुझे वो प्रेशर थोड़ा आया और उसके बाद मैंने घर में ही प्राइवेट ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया और गरीब बच्चों को थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया। और मैंने 2016 का दिया था, उसमें भी मेंस में मुझे 999 आए थे। तो उसके Didn't you opt for further studies in so-called in the field of academics, Masters in Zoology, then say further studies in it? No. You didn't opt for it. अच्छा, एक सिचुएशन ले लीजिए आप. Suppose now you have opted for civil services. If there is a rupees, say, and that's an assumption, 10,000 salary in civil service, be it KS or IS, just 10,000 salary, will you still opt for it? ऑब्वियसली नॉट सर। मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज एक डायनामिक एनवायरनमेंट देता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करने के लिए एनवायरनमेंट देता है। मुझे लगता है कि मैं उन पैसों में भी सेटिस्फाई हो सकता हूँ, क्योंकि जो जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक है, यहाँ तक मेरे जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें ज़्यादा इतने शौक भी नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट एज वेल एज द कंट्री। टू सर्व द पीपल, फिर आप एक NGO भी कर सकते हो, उसमें तो ज़्यादा आप सोशल सर्विस कर सकते हो. वाई देन ओनली सिविल सर्विसेज? सर मुझे लगता है सिविल सर्वेंट जो है वो कमांड उन जो वो कहते हैं उसमें कमांड होता है, रेस्पेक्ट होता है इस फील्ड में। सेकंड, यस ऑब्वियसली श्योरली वहाँ भी रेस्पेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक अथॉरिटी भी होती है। NGOs में वो अथॉरिटी नहीं होती। What are pressure groups? प्रेशर ग्रुप्स मैम वो ग्रुप्स होते हैं, वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं जो गवर्नमेंट को जब भी पॉलिसी कोई पास करते हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशर NGOs आते हैं उसमें, प्रेशर ग्रुप में आते हैं NGOs come in the purview, under the purview of pressure groups. Do they influence government policies? Yes ma'am, NGOs also affect the government policies, but pressure groups are slightly different. तो फिर तो यहाँ रेस्पेक्ट की बात है, तो वहाँ उधर भी रेस्पेक्ट है। मैम रेस्पेक्ट भी कमांड करते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि सिविल सर्विस मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली इन 2021। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए, हम विलेज में रहते हैं, वो काउडंग डालते थे दोनों साइड के रोड से, वहाँ पे ज़्यादा इंसेक्ट्स भी जनरेट होते हैं। तो हम उन घर वालों के पास गए तो उन्होंने हमारा हीड नहीं किया है। तो उसके बाद जब हम तहसीलदार को अप्रोच किया तो उसने एक ही नोटिस निकाले। तो एट दैट टाइम आई आल्सो रियलाइज दैट दे डिमांड द अथॉरिटी, दे डिमांड द कमांड। एंड आई थिंक सिविल सर्विसेज जो है इसमें डायनेमिसिटी जो है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करना, डिफरेंट रोल्स में वर्क करना, ये एक अपने आप में ही बहुत अच्छा अवसर है। Sajad, Mr. Sajad, you say that it is your hobby to teach underprivileged children, right? Are you aware that we have a problem of child sexual abuse in this country? Yes. How do you tackle something like that?
सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स पेरेंट्स के लिए रखने चाहिए। स्कूल्स में हमें जो चिल्ड्रंस हैं उनको हमें समझाना चाहिए व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। एंड थर्ड पॉइंट इज़ हमें सैनिटाइज करना चाहिए ओवरऑल सोसाइटी को, न कि पेरेंट्स को, ओवरऑल सोसाइटी को हमें सैनिटाइज करना चाहिए। You know, recently, I guess in Maharashtra, Sensitized. Maharashtra में 4-year-old girls, you know, they were sexually abused in the washroom of the school by an employee of the school. In that scenario, how can you ensure that protection is provided to such children, vulnerable children? Within the premise of school this happened. Badlapur, Maharashtra. Preventive steps क्या रहेंगे ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए? मैम मैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ CCTVs और जो कंडक्शन ऑफ बिहेवियर है। जब भी हम हायर स्कूल्स को ये बोले कि जब भी आप एम्प्लॉयज़ हायर करो, नहीं ना, गवर्नमेंट स्कूल के सेटअप में CCTV और ये सब, इज इट फीसिबल? मैम फीजिबल है। वी शुड ट्राई टुवर्ड्स मेकिंग आवर एजुकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड। हमें उस दिशा में काम करना चाहिए कि हम स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट फैसिलिटीज़। You are made in charge of such schools. Say for example, Director of School Education. You are made in charge of such schools, government schools, primary schools. How will you ensure that such vulnerable children are protected? Because they were from lower middle class families. Step wise कैसे रहेगा कि बिल्कुल ही प्रिवेंट करेंगे ऐसे इंसिडेंट बिल्कुल ना हो? ठीक है, you are the director of the school. नहीं, you are a director of the Director of school. School That's- Education? You are director of the school. Private आप जिन पोजीशन में होगे वहाँ पे आपके परवी में हर कोई आ जाएगा। सब आपके Take yourself as a director of school education and address this issue. अगर जब मैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा तो मैं जो सिलेबस में एक ऐड करूँगा एक चैप्टर, उसमें हम जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी में जो गलतियाँ होती है उनको बच्चों को पढ़ाएंगे कि किस नहीं, बच्चों को तो आप एड्रेस करोगे लेकिन बच्चे वल्नरेबल है। यू नो, दे अटेंडेड द वॉशरूम, गए थे वहाँ पे एंड पीछे से सफाई कर्मचारी ने, nobody would come to know. Even though children, they would be able to speak, shout, cry. मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाने चाहिए स्कूल में जहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हो और 12 आवर्स जब तक स्कूल खुला होगा वॉच रखना चाहिए हर किसी रूम पे। और जो अनटोल्ड मूवमेंट अगर वाशरूम्स में होगा, अगर कोई अजीब सी मूवमेंट हुई तो जल्दी उस पर्सन को इन्फॉर्म करना चाहिए रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन जो नज़दीक होगा, या उसको इन्फॉर्म करना चाहिए उसको, या उसको डायरेक्टली रेस्क्यू करने जाना चाहिए ताकि हम उन पर विजिल रखें। क्योंकि हमारे हाथ में इतना ही है कि हम नज़र रखें, क्योंकि इंसान के दिल में हम नहीं जा सकते, लेकिन हम इंसान की मोरालिटी और एथिक्स बढ़ा सकते हैं अगर उसको हम सिखा सकते हैं कि किस तरह वो भी आपकी बेटी हो सकती है। अगर हम boys are more vulnerable. There was a study by the Union Ministry of Health and Family Welfare that there is more sexual abuse of boys than girls. अच्छा, हमारे ज़माने में हम ये मतलब को एजुकेशन हुआ करता था राइट फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस, लेकिन ये नहीं कभी नेवर थ्राउट, मतलब हमारे जब पढ़ने के दौरान ऐसे वाक़ात नहीं पेश आते थे। वाई इट हैज़ बिकम नाउ सो फ्रीक्वेंट इन आवर सोसाइटी? यहाँ जो क्राइम रेट हुआ करता था इट वाज नेग्लिजिबल, और ये जो आजकल कहते हैं वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या दूसरे कुछ ड्रग एडिक्शन, जो भी कुछ हो रहा है, इट वाज अननोन इन आवर ड्यूरिंग आवर टाइम्स, बट व्हाई इट हैज़ बिकम नाउ सो डोमिनेंट? क्या वजह, व्हाट हैज़ हैपेंड? 4 साल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को ये सब कर रहे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट हैज हैपेंड? आपके हिसाब से क्या हुआ है? मेरे हिसाब से इसमें भी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी, जो स्मार्टफोन्स आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन है लोगों में, उनका दिमाग चेंज। गवर्नमेंट हैज़ बैन पोर्नोग्राफिक साइट्स, बट देयर आर सर्टेन साइट्स गवर्नमेंट एक साथ नहीं कर सकती। अच्छा, लेट अस अज्यूम यू से पोर्नोग्राफिक एलिमेंट्स कंपोनेंट है ना, It is one of them. व्हाट एल्स? पोर्नोग्राफिक एलिमेंट तो सबको तो मत है अवेलेबल। यस सर। सेकंड इज दूसरा ये है कि हम जब भी हमारा बच्चा बड़ा होता है तो हम पहले ही उसको बोलते हैं ये लड़की है, ये लड़का है, आपको क्या करना चाहिए, उसको हम एक पहली मेंटेलिटी बढ़ते हैं कि आप स्ट्रांग हो भाई को,
लड़की को बोलते हैं नहीं आपको वो काम सर करना का क्वेश्चन था कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब हो अब रहा हो है, रहा है। रीजंस क्या? देखो, आई विल ऐड टू योर मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये जो बिजबारा विची बेल्ट है ना, तमाम बेल्ट, दिस वाज नोटोरियस फॉर व्हाट? कैनबिस चरस। लेकिन वन रिडीमिंग फीचर वाज कि लोकल इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, बिल्कुल सर। लोकल इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। दे वुड गो फॉर दिस प्रोडक्शन, देन जो लोग इसमें कारोबार करते थे या क्या दे विल डू इट। एक्साइज की रेट होती थी, वो स्टोन पेल्टिंग करते थे उनपे। लोकल कंजप्शन नहीं हुआ करता था, बट ऑफ लेट वी फाइंड मैसिव कंजप्शन लोकली आल्सो। तो देयर आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि मतलब ओवरनाइट कुछ तब्दीली आई है। आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी टिल 1990 नथिंग लाइक दैट। यस, ये था, ये बीमारी लोगों में थी ये काश करने की, लेकिन लोकल कंजप्शन कुछ भी नहीं। How can we tackle the problem of so-called narcotics and drugs in, because Bijbehara, as sir said, कि ऐसे न्यूज़ आती पूरा करो, ये कोऑर्डिनेट करो, इनका क्वेश्चन और उनका ये ना आप खत्म करके फिर इस सवाल पे आइए आप। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर मुझे लगता है बहुत सारे रीजंस है उसको यहाँ लोकली कंजप्शन करने के। फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वहाँ पे जो बिजबेहरा में वो थोड़ी ज़्यादा रिसेंटली इंक्रीज़ हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है फैमिली प्रेशर्स और फैमिली फैक्टर्स होते हैं। मैं हर पॉइंट पर आपको अपना काउंटर पॉइंट दूंगा। थैंक यू सर। आप कहते हो अनएम्प्लॉयमेंट उस वक्त नहीं थी, आज है। दैट इज योर पॉइंट। यस। कहाँ थी उस वक्त कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी लोगों को? घर में मुश्किल से एक आदमी कमाता था, सबको पालता था। नॉट ओनली जस्ट न्यूक्लियर फैमिली, अपने अगर 2-4 भाई घर में होते थे, एक भाई कमाता था तो 4 भाई खाते थे, इसके तमाम जो बच्चे वो भी इसी पर चलते थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट उस वक्त भी थी उस लिहाज से। सर हमारी ज़रूरतें आज बहुत ज़्यादा है। अगर हम फ़ोन देखेंगे, पहले उसका रिचार्ज, फिर इंसान को ग्रूम करना, फिर खाना, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमना। So expectations- फास्ट लाइफ नहीं थी सर उस टाइम जितनी आज थे। वहाँ पर उस टाइम उस ज़माने में हम एग्रीकल्चर पे 10 मुझे एक सेइंग है मेरी दादी की याद, वो बोलती थी हमें एक शलवार सूट होता तो 5 औरतें पहनती थी जो जॉइंट फैमिली थी उस टाइम उनकी। आज तो मेरी बहन, हाँ, अब ठीक मेरी है, sister अच्छी बात को है। 10 सूट भी है तो तब भी बोलते हैं मुझे कुछ नहीं है। तो ये सोसाइटियल चेंज है। एक प्रेशर होता है, बर्डन इंक्रीज होता है एक इंसान पे, एक इंडिविजुअल पे होता है कि वो कमाने के सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढे। मगर मुझे लगता है एक और मसला जो है, बिफोर 1990 ये था कि अगर आपके गांव में 100 घर रहते थे, उस पे 50 घर अच्छा खाना पी ना, उनके पास अच्छा माली हालत उनकी अच्छी थी। अगर बाकी 50 घरों की उतनी ठीक हालत नहीं थी, लेकिन दे वुड से ठीक है, इन्होंने मेहनत की है, इनके पास ज़मीन है या ये पढ़े लिखे हैं, इनको कुदरती इनको हमारे मुकाबले में ज़्यादा आमदनी हो सकती है। हम भी कोशिश करेंगे, बच्चों को तालीम देंगे और मेहनत करेंगे, हमें भी इंशाल्लाह किसी न किसी वक्त कुछ मिलेगा। एक सेटिस्फेक्शन लेवल थी और उम्मीद थी। इसके बुनियाद पर वो गलत कुछ नहीं करते थे कि ठीक है, मतलब ये नहीं कहते कि इसको मिला है तो इसलिए हम इस कंपटीशन में आते थे कि अगर इसने 50 साल के बाद ये एक हैसियत हासिल की है तो मैं ओवरनाइट इसके बराबर आना चाहता हूँ। ये नहीं था कि वो कहता था कि ठीक है इसने इस तरह किया मैं भी करूँगा। आज क्या, व्हाट इज़ दैट, कि जो आजकल ये इसी मतलब ना, ये जो कहते हैं कि ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास कल कुछ नहीं था, आज कुछ है, तो आप कहाँ से आए कहते हैं जब इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। सो रिगार्डलेस ऑफ मीन्स ही इज कंसर्न अबाउट एंड्स, कि मेरे पास भी मकान बने, गाड़ी बने, मैं भी ऐश करूं, तो देन ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट प्योरिटी ऑफ मीन्स। डू यू एग्री विद व्हाट सर इज सेइंग? डू यू एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग पूरी तरह से? यस 80% आई एम एग्रीइंग कि इंसान तो दिन ब दिन चेंज होता है, उसको ज़्यादा मीन्स। What of the rest of the 20%? लास्ट 20% इज मैम जो मैंने ऑलरेडी कहा है, मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल को प्रेशर है
डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, स्पेशली फैमिली से उनको प्रेशर होता है जब वो कुछ एग्ज़ाम कॉल पे नहीं कर पाता है तो उसको प्रेशर आता है, तो वो उस गलत तरीके से। और सेकंड इज़ जो हमारा फ्रेंड ग्रुप होता है, अगर उनमें से गलत हो गए एक दो, तो तीसरा ऑटोमेटिकली वहाँ जाता है। तो पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ आई विल मूव टू सर्स क्वेश्चन। हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, पेरेंट्स को जो प्रोग्राम्स रखने चाहिए पेरेंट्स के लिए, किस तरह हमें अपने बच्चों को नज़र रख सकते हैं उन पे, किस तरह हम उनको इन गलत चीज़ों से बचा सकते हैं। स्कूल्स में हम प्रोग्राम्स रखें। अगर मैं ऑफिसर होगा तो मैं डायरेक्ट जो हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको बोलूँगा कि एक मॉक ड्रिल कराया जाए उन विलेजेस में जहाँ पे ये चरस ज़्यादा उगाया जाता है। उनको बोले कि अगर ये तुम्हारे बच्चे नहीं लेकिन किसी का बच्चा इस दुनिया में तो ख़राब होता है। आई थिंक ये भी जिस तरह टीचर अपने घर का ख्याल रखता है, अगर उसी तरह वो अपने उस स्कूल में जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखेगा तो तब्दीली आ सकती है। यस। Sajjad, your caste is loan. So you have any idea about the caste system of loan, how it comes like? इस पे कुछ आप बोल सकते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ इट इज़ लवानिया इन द क्षत्रिय क्लास, फ्रॉम दैट द लोन नेम हैज़ बीन डिसेंडेड। Then how it has been to your family? Shajrana, so you have any idea of that? So you have this zoology as a subject, right? Yes. MSc zoology, 73% marks in 2015-16, Yes. University of Kashmir. So you have that any idea of the subject? You have the hold of that subject? Can you give me the idea about genetic mutation contribute to the evolutionary process? म्यूटेशंस जो होते हैं वो सडन चेंजेस होते हैं। जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है उसमें सडन चेंजेस होते हैं। म्यूटेशंस डिफरेंट तरीके की होती है। हम माइक्रो म्यूटेशंस एज वेल एज मैक्रो म्यूटेशंस। म्यूटेशंस एक रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा एक जेनेटिक कोड है, वो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। जब वो किसी प्रोटीन को कोड रहा है तो हमारा एक कैरेक्टर डेवलप होता है। अगर उस जेनेटिक कोड में चेंज आई तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। दैट इज़ वाई म्यूटेशंस आर द रॉ materials for the evolution. There are endangered species. There's a problem. So how we can tackle that? How we can mitigate that? ऑलरेडी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए बहुत सारे मेजर्स उठा चुकी है कि नेशनल पार्क हम लगाते हैं, बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब कोशिश करनी चाहिए कि हम जो उनका जेनेटिक सीक्वेंसिंग करें, हम जीन बैंक्स क्रिएट करें, जीन पूल्स उनके क्रिएट करें, ताकि हम उनकी कंजर्वेशन एट लेबॉर्ट्री लेवल पे भी इंश्योर कर सकते हैं कि कल को अगर कोई फॉरेस्ट फायर बढ़ाया, फॉर एग्जांपल हमें एक लीपर्ड पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क में, अगर वहाँ से वो एक साथ हुए, अगर हमें उनका जेनेटिक बैकअप होगा तो वी कैन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम उनको लेटर स्टेज में उनको क्रिएट कर सकते हैं। Do you have any idea of the Uniform Civil Code? Is it secular code or what you see? Whether that code, what is your view on that code? It's very hot topic nowadays. And there was a statement by the Honorable Prime Minister also that it's going to be a secular code. Uniform Civil Code is a directive under Directive Principles of State Policy under Article 44 of the Constitution. पहले आज़ादी जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा गया। मेरा ओपिनियन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश होना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन हमें एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव, हमें सबका साथ पहले उनको इसको स्टडी करना चाहिए। फिजिबिलिटी कहाँ पे है, किन पे। No, you specify areas which are, in your opinion, areas of concern. The areas which you want to address under Uniform Civil Code or Common Civil Code, or now the PM says secular code. Which are those areas? सर स्पेसिफिकली मैरिज रिलेटेड इशूज जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ और हिंदू कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल जो एलिमनी के इश्यूज होते हैं मैरिज के रिलेट, जब डाइवोर्स जो होता है, डाइवोर्स के रिलेट जो होते हैं, ट्रिपल तलाक था, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिपल तलाक बिल लाई है। वो जो हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं मैरिजेस में, वो प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी One, you say in substantially you say ये inheritance rights. Right now they get 1 share. Woman out of 4 ones. As against man, he gets 2 shares
lady gets one share. In earlier times, none of the religions granted rights to women except Muslims had. But now with the passage of time and the visionary leadership of this country, they introduced laws. So there they have kept parity between men and women under Hindu succession law. But then practically it has never been implemented. You cannot show me even a single, so far as Valley is concerned. Yes, sir. Haryana. And I talk of Kashmir. Never Kashmiri Pandit girls would get. Neither they would demand nor they would get the share. Against that, Muslim ladies would get the share which is guaranteed to them under the Shariat. Now you say it should be now gender neutral. Yes. That is your one recommendation. Yes. And what else? सर एक तो मैंने मैरिज का बोला इनहेरिटेंस मैरिज मतलब बराबर मतलब मिलना चाहे इनको. बिल्कुल होना चाहिए सर. अच्छा ये और what else? बराबर होना चाहिए सर. सर हम जब भी गवर्नमेंट कोशिश करती है लाज बनाने की, लेकिन लाज एक सोर्स नहीं होता है कि सोसाइटी को हम उसका माइंड चेंज करें. हमें सोसाइटी पे चेंज लाने की जरूरत. और कहाँ पे फ्रिक्शन है इसको इम्प्लीमेंट करने में, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में, और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है? सर बता रहे थे आपने बोला होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है जहाँ पे नहीं ये हो मैरिज पा रहा? एक हो गया, दूसरा एक आपने कहा इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस. और क्या प्रॉब्लम एरिया है विच एट नेशनल लेवल दे वांट टू एड्रेस? जो हमारी प्रॉपर्टीज है, रिसेंटली जो वाकफ बिल भी लाई है, उसके रिलेट भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं. एडॉप्शन राइट्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है. क्या आपको नहीं लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ी हुई? Is Parliament supreme or Constitution is supreme? It is only a DPSP, it's not a fundamental law of the land. Constitution. Can Parliament change the Constitution? Yes sir. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है? अरे इनकम है कि फंडामेंटल राइट है मेरा, गारंटीड है मेरे राइट्स एज ए माइनॉरिटी. नाउ इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज एडवाइजरी. तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर ब्रीचिंग माई फंडामेंटल राइट्स. उस पर ये आपसे पूछना चाहते हैं, इज इट एडवाइजेबल? सर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में बस फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट. दे कैन बी abrogated by the parliament. They can be abrogated by the parliament. Are you sure? Can this is the basic features of the constitution. Can parliament abrogate them? The amend. Sorry, I use the better word is amend. Amend what? Fundamental rights. They can amend the fundamental rights Reasonable restrictions. with reasonable. Sir, already No, there is difference. Abrogation, amending, and placing, imposing reasonable restrictions to fundamental rights. Otherwise, you know the famous case about doctrine of basic structure of Indian Constitution. Doctrine of basic structure of Constitution, no? So that does not allow. What's that? Doctrine of basic structure of Constitution. सर डिफरेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं उसमें उन्होंने बोला कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जड़ बना जिस तरह. तो उसमें फंडामेंटल राइट्स भी एक फीचर है ना? No sir, as far as I know, fundamental rights are Parliament can amend the fundamental rights. So what remains then? What is the basic structure of the Constitution? There are basic things within the fundamental rights. For example, ma'am. If it touches the basic features of the Constitution, it cannot be amended. For example, ma'am, judiciary review is one of the basic structure of the Constitution. वो Parliament change नहीं कर सकती है. Parliamentary form of government is basic structure of the Constitution. Democracy is the basic. Fundamental rights पे कहीं पे basic structure नहीं है. सुनो क्या कहते हैं. They are helping you. है कि नहीं है? है कि नहीं है फंडामेंटल राइट्स आपके हिसाब से? सर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. जो जितने मैं जानता हूँ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. रूल ऑफ लॉ है दैट ऑलरेडी करस्पॉन्ड विद द The फंडामेंटल. rule of law that is part of Article 14. That is a part of article. Explicitly नहीं है, implicitly there is. अच्छा आपने बीच में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जी सर कॉन्स्टिट्यूशन और पूछा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम. आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. आपको ऐसा क्यों लगता है? इलैबोरेट ऑन दैट प्लीज.
सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम के हम जो स्ट्रक्चर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का, जो हमारे डाउन ट्रॉडन सेक्शन उसके उनके राइट्स का, इंडिविजुअल के राइट्स का, ये उन सब को सब उसी में है। लेकिन पार्लियामेंट जब हम बनाते हैं, पार्लियामेंट डिसॉल्व भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट सुप्रीम। पार्लियामेंट इज नॉट 5 ईयर के बाद हम नया पार्लियामेंट गठन करते हैं, तो पार्लियामेंट सुप्रीम इसलिए नहीं है। देयर इज ओनली अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट एंड द इंडिया पार्लियामेंट। इन यूके द पार्लियामेंट is supreme, but in India, constitution is supreme. As we follow the constitution, our MPs take the oath on the constitution. I think it is the supreme. बैलेंस ऑफ पावर्स फिर क्या है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर्स? अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जुडिशरी सुप्रीम नहीं है, तो वेयर इज द बैलेंस? मैम जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर जो होता है कि जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस है ऑलरेडी जो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, या लेजिस्लेचर है हमारे, जो इनके अलग अलग डोमेन्स ऑलरेडी देयर 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनने उसमें ऑलरेडी तो अगर इसको हम फर्दर इलैबोरेट करें, देन देयर इज नथिंग सुप्रीम इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम नहीं है, उसको अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है, उसको ओवरराइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है, उसका कोई भी जजमेंट जो है उसको ओवरराइड कर सकता है। जो आप कहते हो ये कहते हैं, उसका मतलब ये हुआ। मैम आई थिंक द बेस्ट आंसर इज as in the preamble of the constitution it is already written, we the people of India, तो लोग सुप्रीम है हिंदुस्तान के। अच्छा, मैं आपको इससे बाहर निकालता हूँ। ये आपका गांव है ना, Yes, sir. ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है? So, पहले होमशाली बुक में था, अब रिसेंटली चेंज किया है। डिलिमिशन कमीशन जो हुआ था हमारा, उसमें बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा है। और आपके इर्द गिर्द जो गाँव है वो किस में आते हैं? तो जाबलीपुरा को भी बिजबेहरा में शिफ्ट किया था, वो पहले होमशाली बुक में था। बाकी जो दक्षिणपुरा एरिया के इलाके थे वो बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही थे, जुरपारा, बिजबेहरा, वीरी। तो आर यू हैप्पी अबाउट इंक्लूजन ऑफ योर विलेज इन बिजबेहरा? यस सर। व्हाट इज द नेम अंडर द डिलिमिटेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी, nomenclature of the constituency? Earlier it used to be Bijbehara. Now what is the nomenclature of the constituency? Sorry sir, I don't. You don't know. You have any idea about Sirigofara? Yes sir. That is part of Bijbehara. सिरगफारा इज सेपरेट तहसील, तहसील के हिसाब से वो सेपरेट है, और वो बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है। So did I ask you about Tahsil or about assembly segment? I ask you, मैंने पूछा आपसे असेंबली सेगमेंट, सिरगुफारा का स्टेटस बिजबेहरा में ही आता है। बिजबेहरा। बिजबेहरा ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आपका है ना, थोड़ा बहुत आपको इत्मीनान देने के लिए कि थैंक यू। अच्छा आप बताओ, आप खुद बताओ, आपको क्या लगा जो आपको हमने पूछा? आपने किस किस्म के जवाब दिए? आप मुतमईन हो? अगर मुतमईन हो तो अच्छी बात है, या आपको लगता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको लगता है खुद की उसमें कमी है, आपको जो आपको तो इल्म है लेकिन उसमें और इजाफा करना पड़ेगा? ये बताओ, आप खुद बताओ। सर अगर मुझे खुद को रेट करना होगा, मैं 7 करूँगा आउट ऑफ 10। तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा भी मतलब फ्रैंक नहीं, तो मुझे पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी है अपने एरिया के रिलेट, जो भी जो करंट इवेंट्स है उनके रिलेट, और जो भी इशू होता है उसको थारोली पढ़ने के रिलेट। बिल्कुल भाई, आप अगर केस के लिए दे रहे हो और आप बिजबेहरा से हो, तो सर ने जो पूछा आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, खट 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 करके आना चाहिए। काफ़ी आप फंबल कर रहे हो वहाँ पे। That is the biggest favor to them by the Delimitation Commission. This is a village which is बिल्कुल near to Padshahi Bagh. You might have seen that Chinar Garden in Bijbehara. उसके साथ ही है। जैसे पातशाही बाग यहाँ भी है ना, श्रीनगर में भी पातशाही बाग है। बट ही शुड बी अवेयर ना, ये सब सही कर रहे हैं, ये तो आपके एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए। और पहले तो एक छोटा ऑब्जर्वेशन है, पहले अंदर आते समय ना हाथ ऐसे स्कूल के बच्चों की तरह करके अंदर आना, और ये आपके कपड़े भी स्कूल के बच्चों के कपड़े लग रहे हैं। उस दिन तो थोड़ा वैसे पढ़ना, ठीक है? इट कुड बी जस्ट अनहैप्पी कोइंसिडेंस, बट स्कूल वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जनरली थोड़ा अलग फीलिंग जाता है ना। अच्छा, आपका इकोनॉमी की वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है? इकोनॉमी की वीकर EW, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी,
सर क्या कैटेगरी 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 है Category, yes. EWS है तो आपने यहाँ लिखा जर्नल, अच्छा ठीक है, उसी में आएगा, ठीक है। Then work hard, you are done. Not in general category, but entitled for EWs. one thing is good about it आप सोचते हो जब क्वेश्चन पूछते हो तो you think Is good. you take a pause good Yes. and you took permission also to speak in Urdu That is also good. Not a-